پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ازلی اور ابدی ہے، جس کا نام یہوہ ہے، اس کے پاک اور بزرگ نام میں جو مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی باپ بھی ہے، آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ میں ہماری ID follow.jesus7 پر کی گئی پرستش کے لیے، دعاؤں کے لیے میں خداوند کا اور اس کے بعد خدا کے لوگوں کا ممنون ہوں، اور آپ سب کے لیے جو فیس بک کے کئی پیجز پر، یوٹیوب چینل پر اور واٹس ایپ گروپس میں اس خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی بڑی برکت کا سبب ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ آئیں ہم اپنی توجہ خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام کی طرف لگانے والے ہوں، تاکہ وہ بولے اور ہم خاموش ہوں۔ کتاب مقدس سے ہم ان ایام میں زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم زبور 78 یعنی 78 پر ہیں۔ اس 78 زبور میں چونکہ یہ کافی طویل ہے اور مختلف خدام مسیح کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب اتنے پورے زبور کی بیک گراؤنڈ تو میں بیان کرنے سے رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آج آپ کے ساتھ مل کر میں 78 زبور کی 43 یعنی 43 آیت سے لے کر 51 یعنی 51 تک آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ زبور 78 78 اور اس کی 43 یعنی 43 سے 51 یعنی 51 آیت تک توجہ دیجئے گا، غور سے سنیے گا کہ ان آیات میں میرے لیے اور آپ کے لیے روح القدس کی تحریک سے کیا لکھا گیا اور میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ یاد رہے کہ اس زبور کے ٹائٹل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زبور آصف نے لکھا ہے، اور اس آصف سے متعلق اس سے پیشتر بہت سی بات ہم کر چکے ہیں، جب ہم پہلا تواریخ اور اس کے 25 باب اور اس کی پہلی آیت، اور تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 29 باب کی 30 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آصف کی بابت ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ شاعری کے ساتھ نبوتی کام بھی کرتا تھا شاہان اسرائیل کے حضور۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں اس زبور کے شروع میں لکھا ہے آصف کا مشکیل، تو اس سے مراد ممکن ہے کہ مشکیل سے مراد یعنی کوئی ایسی سر، کوئی ایسی ٹون جس پر یہ زبور گایا جانے کو تھا۔ جب ہم اس زبور کی بابت جنرلی دیکھتے ہیں تو یہ اسرائیل کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، بالخصوص مصر سے لے کر داؤد تک کے زمانے کی تاریخ۔ مصر سے مراد جب ان کا مصر سے خروج ہوا، وہاں سے لے کر داؤد تک کے زمانے کی تاریخ کو بڑے اختصار سے قلم بند کیا گیا پاک روح کی تحریک سے۔ لیکن جب ہم
43 आयत से लेकर 51 आयत तक जो रेफरेंस मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं, इस हवाले में अहले मिस्र पर खुदा की तरफ से आने वाली आफात का जिक्र है। अगरचे हम इस सेक्शन में यानी इस हिस्से में हम उस खास हिस्से पर गौर करते हैं जिस हिस्से में याद किया जा रहा है कि खुदा ने अपने लोगों की मदद के लिए, उनके छुड़ाने और रिहाई दिलाने के लिए मिस्र के जोर को और फिरौन के आहनी पंजे को कैसे ढीला किया और तोड़ा, ताकि खुदा अपने लोगों को मूसा की क़ियादत में मिस्र से निकालकर सरजमीन माऊद तक लेकर जाने वाला हो। याद रहे कि खुदा ने मिस्र पर कई आफात नाज़िल की थी और इन आफात के पीछे यह बात तो क्लियर है कि खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि जो मैं हूं वो मैं हूं, वैसा और कोई नहीं है। लेकिन याद कीजिए कि जिन जिन हैवानात पर या जमीनी खित्ते पर या हवा पर या पानी पर गर्जे के जहां जहां उन आफात का नजूल हुआ, उन सब के पीछे अहले मिस्र का कोई ना कोई देवता था जो नाकाम हुआ, क्योंकि वो देवता खुदा की कुदरत के आगे कुछ ना कर सके। और जो इस्राएल का यहोवा खुदा था, जो एलिया का खुदा था, उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि मेरे जैसा और कोई माबूद नहीं है। कौन है इस माबूदों के माबूद जैसा? कोई भी नहीं। अब हम इन आयात की तरफ आते हैं, लेकिन याद रहे कि जो इस्राएली थे वो इस बात को याद कर रहे थे कि खुदा ने, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि आसफ इस बात को याद करवा रहा था इस्राएलियों को कि खुदा वफादार है। खुदा ने अपनी कुदरत कामला से आपको मिस्र की गुलामी से आजाद किया है। लेकिन ए इस्राएलियों, खुदा तुम्हारे साथ कैसा वफादार रहा, लेकिन तुम अपने बागियाना पन से, बगावत से बाज नहीं आए। तो मुझे यूं कहना चाहिए कि इस पूरे ज़बूर को अगर हम यूं देखें कि खुदा की वफादारी इस्राएल के साथ और इस्राएल की बगावत खुदा के साथ, ये इस बगावती रवैये की बाबत बहुत कुछ बताता है। लेकिन अभी उनको याद दिलाया जा रहा है कि खुदा ने कैसे अपनी कुदरत कामला से तुम इस्राएलियों को निकाल कर सरजमीन मऊद तक पहुंचाया, जिसका उसने हमारे अबाओ अजदाद से वादा किया था। आयत 43 में लिखा है, उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और जुगन के इलाका में अपने अजाइब। उसने मिस्र में और उसने जुगन के इलाका में। ये उसने कौन है? जब हम सियाको सबाक इस हिस्से का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह यहोवा खुदा की बाबत बात हो रही है,
जो मसीह यीशु में अब हमारा आसमानी बाप है। आमीन। तो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि वो उनको याद दिलाता है कि उसने, अरे तुम्हारी गुलामी की कीमत अदा की है, तुम्हें छुड़ाया है, ऐसे ही नहीं, उसने बड़ी कुदरत के साथ मिस्र में अपने निशान और अजीब काम जाहिर किए हैं। और ज़गन के इलाका में, ज़गन मिस्र के असल में मिस्री जबान का ही एक लफ्ज है जो दरियाए नील के किनारे एक इलाके का नाम बताया जाता है। गोया यह भी मिस्र में ही था। हम मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि वो ये कह रहा था कि खुदा ने, यहोवा खुदा ने किस तरह मिस्र पर अपने अजीब काम किए और अपने हाथ को बढ़ाया। तुम भूल गए हो, इसलिए तुम उसके बरखिलाफ बगावत करते हो। तुम्हें क्या हो गया? उनको यह याद दिलाता था। और मुझे यूं लगता है कि किसी को, मुझे भी और आपको भी याद दिलाने की जरूरत है। क्या? कि किस तरह से खुदा ने मुझे और आपको उस मिस्र से तो नहीं जो अफ्रीका में है, बल्कि गुनाह के मिस्र से कीमत अदा करके छुड़ाया, रिहाई दी और बचाया है। अब हमारा रवैया और एटीट्यूड खुदा के हुजूर वफादारी का है, शुक्रगुजारी का है, उसके हुजूर तारीफ करने का है, या बगावत और नाफरमानी और दुनिया परस्ती का है। हम शख्सी तौर पर सोचें कि मैंने उस हकीकी माबूद को छोड़कर कहीं दुनिया को अपना माबूद तो नहीं बना लिया। सोचना है इस बात को। जब हम आयत 44 देखते हैं, उसने और उनके दरियाओं को खून बना दिया। एक ही बात चल रही है। यहोवा खुदा ने अपनी कुदरत से उनके दरियाओं को, जिनमें दरियाए नील शामिल है, बहुत बड़ा दरिया, इसको भी गोया वो माबूद के तौर पर मानते थे, और वो अपनी नदियों से पी ना सके। भाई, जो मंबे है दरियाए नील, जब खुदा ने अपनी कुदरत से फिरौने मिस्र को यह दिखाया कि मैं किस कदर कुदरत वाला हूं, तो उसने नील को गोया खून बना डाला। और इस दरिया से निकलने वाली जितनी भी स्ट्रीम्स यानी नदियां थीं, साफ जाहिर है वो खून में तब्दील हो गई। इससे पहले मिस्रियों का यह दावा था कि पानियों पर कंट्रोल करने वाला हमारा एक देवता है, बिलखसूस दरियाए नील पर, और उस देवता का नाम था हापी, HAPI, हापी, जो पानियों का देवता था। गोया खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर कर के फिरौन को और अहले मिस्र को दिखाया कि हापी वापी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, मेरे नाम में कुदरत है, मेरा नाम यहोवा है। और इस आयत के मुताबिक हम इसी बात को देखते हैं। कहां नील खून बना था? अगर आप चाहें, तालिब इल्म की रूह है, अगर बाइबल मुकद्दस के साथ नोटबुक और पेन पेंसिल है तो नोट कर लीजिए खरूज की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 17 से
21 आयत तक, खरूज 17 खरूज 7 और उसकी 17 से 21 तक, और फिर बाद में आप जबूर 105 और उसकी 29 आयत भी तिलावत कर सकते हैं। यहां आपको मालूम होगा कि कैसे खुदा ने अपनी दस्ते कुदरत से मिस्र के पानियों को खून बनाया है। आयत 45 उसने उन पर मच्छरों के गोल भेजे जो उनको खा गए। कौन खा गए? मच्छर। किनको? मिस्रियों को। किसने भेजे? खालिक ने, किसी देवता ने नहीं, खुदा ने। और उन्होंने क्या किया? मिस्रियों को खा लिया। और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। ओह, देखिए जरा, पानियों के देवता हापी को, मैं ये तो नहीं कह सकता उसको शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिरौने मिस्र को जरूर शर्मिंदगी हुई होगी जब पानी का देवता हापी कुछ ना कर पाया तो, क्योंकि वो तो बुत था, उसको क्या शर्मिंदगी होनी थी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम दूसरी आफत, इन आयात के मुताबिक बात कर रहा हूं, का जिक्र पढ़ते हैं कि कैसे खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से मच्छरों को हुक्म दिया और वो मिस्रियों को काटने लगे, और मेंढक आए और उन्होंने उनको तबाह किया। उनको ये याद दिला रहा था आसिफ पाक रूह की तहरीक से कि याद करो कि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे दुश्मनों के साथ क्या किया। और याद रहे कि जो मेंढक है, इसके लिए, या जितने भी मच्छर हैं या फिजा है, इसके लिए जो मिस्री लोग थे वो समझते थे कि हमारी एक देवी है जिसका नाम हेकट है, HACKET, हेकट। और वो देवती है, वो देवी है जिसका सर मेंढक की तरह का था। और वो ये समझते थे कि ये प्रोडक्शन की या जो पैदावार की देवी है, और इस फर्टिलिटी यानी प्रोडक्शन या पैदावार में ना सिर्फ फसलों की बात हो रही है, बल्कि कोई भी प्रोडक्शन, इवन हैवानात के बच्चों के बच्चे होना, मच्छरों से मच्छरों का पैदा होना, मेंढकों से मेंढकों का पैदा होना, ये सारी पैदावार, प्रोडक्शन, मिस्री लोग ये समझते थे कि जो हमारी हेकट देवी है ये उसके कंट्रोल में है। और इस देवी का जो सर था वो मेंढक की तरह का था। अगर आप बाद में यह देखना चाहें कि यह कहां पर लिखा हुआ है कि मच्छरों के जरिया और मेंढकों के जरिया मिस्रियों को खुदा ने सजा बख्शी, आप खरूज 8 बाब और उसकी पहली 7 आयात देख सकते हैं। 8, 1 की 7, और फिर जबूर 105 की 30 आयत। हमने पानियों के लिए 29 देखी थी, अब मच्छरों और मेंढकों के लिए आयत 30 आप देख सकते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ मेंढकों की एक अलग देवी थी, लेकिन जब मैं मच्छरों की बात करता हूं तो मच्छरों के लिए एक और देवता था जिसका नाम था खपरी, KHAPRI, खपरी, और इसका सर मक्खी की तरह का था। और इसके लिए अगर आप मच्छरों के ताल्लुक से
हवाला देखना चाहें तो खरूज 8 बाब 20 से 24 और जबूर 105 की 31 आयत। यूं लगता है कि जबूर 105 में इन्हीं बातों को, इन्हीं आफात को कई बार दोहराया जाता है। इस हवाले के साथ बाद में आप जबूर 105 भी तिलावत कीजिएगा, आपकी काफी मदद होगी। आयत नंबर 46 यानी 46, उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनके गुलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने यानी खुदा ने उनकी ताकों को, यानी ताक से मुराद अंगूरिस्तान, अंगूरों के बाग, उनको उसने उनकी पैदावार और कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। गोया यूं लगता है कि आयत 46 के मुताबिक कीड़े और टिड्डियां भेजी गईं और उनकी प्रोडक्शन और उनकी फसल का हासिल उन्होंने तबाह कर दिया है। और ये जो फसल की प्रोडक्शन है और जो उनकी मेहनत का हासिल और फल था, इसके हवाले से जो उनका देवता था उसका नाम सेत था और ये SET से लिखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊं कि ये तूफान और अबतरी को रोकने के लिए देवता था। तूफान और अबतरी को, स्टॉर्म्स और जो डिसऑर्डर्ड चीजें थीं, उनको वो वापस सही करने के लिए इसका नाम था, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। इसके लिए अगर आप हवाला देखना चाहें तो खरूज 10 बाब और उसकी पहली 20 आयत और जबूर 105 की 34 आयत आप देख सकते हैं। अब हम अपने हवाले में आयत 47 में चलते हैं। उसने उनकी ताकों को औलों से और उनके गुलर के दरख्तों को पाले से मारा। औलों और सर्दी से उनके जो अंगूरिस्तान थे और गुलर के दरख्त, उन तमाम को खुदा ने मुकम्मल तौर पर झाड़ दिया और उनकी मजीद फसल उनको ना मिल पाई। अपनी कुदरत खुदा ने दिखाई और जाहिर किया कि मिस्र के देवता कोई हैसियत नहीं रखते। औलों के लिए या जो नेचुरल डिजास्टर थे उनसे बचने के लिए उनकी एक देवी थी, उसको NET के तौर पर याद किया जाता है। इब्रानी में और अंग्रेजी में और इवन उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनकी एक देवी बनाम नेट के तौर पर थी और उसकी बाबत यह समझा जाता था कि यह औलों और बर्क यानी बिजली को रोकने वाली देवी है। अंदाजा कीजिए कि हर एक बात के लिए कोई ना कोई उनका देवता था। और याद है कि किसी वक्त मैंने कहा था कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, देवियां और देवता। कब किसको खुश करते होंगे मुझे मालूम नहीं और मेरी समझ में नहीं आता। हम तो एक की फर्मा बरदारी में भी कामिल नहीं है, लेकिन वो 33 करोड़ इम्पॉसिबल। खैर,
अगर औलू के ताल्लुक से आप हवाला देखना चाहें कि कहां मिस्रियों पर ये ओले बरसे थे, तो आप खरूज 9 बाब और उसकी 18 से 26 आयत तक देख सकते हैं, और फिर जबूर 105 की 32 आयत। इससे आपके इल्म में और ज्यादा इजाफा होगा और ज्यादा तरक्की मिलेगी हमारे जानने में और हमारी मालूमात में। उसके बाद हम आयत 48 देखते हैं। उसने उनके चौपायों को औलू के हवाला किया। चौपाए मवेशी जो उनके पालतू जानवर थे, उनको औलू से उसने नाबूद किया, और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के यानी बिजली के वसीला से उसने उनको नाबूद किया। कुछ भी उनके पास ना रहा। बात यह नहीं थी कि खुदा जालिम है जैसे बाज लोग कहते हैं, बात यह नहीं थी। बात यह थी कि खुदा इन मुख्तलिफ देवताओं को मानने वाले लोगों पर यह जाहिर कर रहा था, तुम्हारे देवता कुछ भी नहीं, दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं जो कुछ नहीं कर सकते। कुदरत मेरे नाम में है। इसलिए खुदा ने ये बड़े बड़े मोजज़ात और अजीब काम किए हैं। और इसके लिए उनकी एक देवी थी जिसका नाम था हाथोर, HATHOR। हाथोर एक उनकी देवी थी। इसको आमतौर पर मोहब्बत की भी और प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर भी इस देवी को माना जाता है कि यह प्रोटेक्ट करती है। लेकिन फिर भी देखिए, इन देवियों और देवताओं के होने के बावजूद उनके माल मवेशी खत्म हो गए और मार दिए गए हैं। महज खुदा अपनी कुदरत दिखाना चाहता था कि मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। फिर हम आयत 49 देखते हैं। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ो गजब और बला को उन पर नाज़िल किया। देखिए, उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ो गजब यानी कहर, और बला को यानी आफात को उन पर नाज़िल किया। इस आयत के माना बड़े ज़ख़ीम और गहरे हैं, लेकिन फिर भी मैं यूं कहूंगा कि यह असल में उस मौत की तरफ इशारा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है और उनके जरिया से खुदा ने यह काम अपनी दस्ते कुदरत के वसीला से करवाए। आपको याद है कि जब एक मौत का फरिश्ता उस आखिरी रात को, जब बिलाखिर फिरौन मिस्र हार गया, तो अपने खुदा के लोगों को जाने की इजाजत दे ही देता है। उससे पहले मिस्र के पलौठे किस कदर मार दिए गए थे। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर और उनकी फौजों को यह समझने के लिए यह बात की गई है कि हम इस बात को समझें कि किस तरह उसने अपने लोगों का साथ दिया और उनको जो वजूदे खुदाबंदी के मुनकर हैं उनको सजा दी है। और इसके लिए बहुत कुछ और हम यहां पर देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर में
आयत 50, उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया। कहर से मुराद गजब, अजाब, गुस्सा, नाराजगी, और उनकी जान मौत से न बचाई, उनकी जान मौत से न बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाला की। और 51, उसने मिस्र के सब पैलोठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुव्वत के पहले फैल को मार डाला, यानी मारा। ये आयत 50 और 51 की बात हो रही है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है कि जो मिस्री लोग थे, फिरौन के इशारों पर चलते थे, जिस सबब से खुदा ने अब ये एक आखिरी आफत जो मौत के फरिश्ता को भेजकर नाजल की, मिस्र के पैलोठों को मारा और फिरौन को अपनी कुदरत दिखाई कि मैं किस कदर अजीम और कुदरत वाला खुदाबंद हूं। इस ताल्लुक से मैं यहां पर यह भी बात बताना चाहूंगा कि जब 51 आयत में आया है कि खुदा ने मिस्र के सब पैलोठों को मारा, और आगे तफसीर की जा रही है, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुव्वत के पहले फल को, तो इससे मराद यह है कि हाम एथियोपिया यानी अफ्रीका में जाकर बसा, और ना सिर्फ ये बल्कि वो मिस्र के का ही एक हिस्सा है उस जमाने के एतबार से। और उलमाए बाइबल ये बताते हैं कि जो मिस्रियों की जो पहली औलाद थी वो हाम ही की औलाद थी, हाम ही की नस्ल थी। और इसीलिए हम इसके बारे में बहुत कुछ अहद अतीक में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। पैदाइश की किताब हाम के गुनाह और मकरू हरकत की बाबत क्लियरली बताती है कि उसने क्या कुछ किया है। लेकिन लिखा है खुदा ने मिस्र के सब पैलोठों को, यानी हाम के मस्कनों को, यानी खैमों को, जाए रिहाइश को, उनकी कुव्वत के पहले फल को, साफ जाहिर है पैलोठों की बात हो रही है। आयत के पहले हिस्से में जनरल बात और दूसरे हिस्से में इस जनरल बात को खोल कर बयान किया गया है। मेरे अजीजों, आप बाद में ज़बूर 105 को जरूर तलावत कीजिएगा, और अगर मुमकिन हो तो 106 ज़बूर की 22 आयत को भी तलावत कीजिएगा, और अगर मुमकिन हो तो पहला तवारीख उसका पहला बाब और उसकी 40 आयत भी, सॉरी 4 बाब की 40 आयत, पहला तवारीख 4 की 40, और फिर ज़बूर 78 की 51 तो हमने देखी ही है। 43 से 51 तक आप तलावत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ और मिलेगा। हरफ आखिर के तौर पर यही है, आए हम खुदा का मुकाबला न करें, आए हम अपने आप को कोई माबूद ना बना बैठे, अपने आप पर फख्र और गुरूर और गुमंड न करें, क्योंकि कलाम कहता है मुबारक ओसे दा हाल जानो या हवा उत्ते भरोसा जिसता, घमंडियां कुल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। आए हम खुदा के साथ जोर आजमाई न करें, बाज आ जाए, आए हम उसकी तरफ रजू लाए और उसी से अपनी कुव्वत और हिकमत और दानिश मांगे। बंदों को ना देखें बल्कि खालिक को देखें।
ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहें तो वो हमारा भला करेगा और तूफानों में भी हमें संभालेगा, आग की भट्टियों में भी एलाजादा की सूरत में हमारी मदद फरमाएगा। आए हम दुआ करें। कादर मुतलिक आसमानी बाप, शुक्र करता हूं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है। खुदावन, हम इंसान होते हुए बाज औकात इंसानों को भी, इवन मजहबी रहनुमाओं को भी ना कहते हुए भी अपना माबूद बना लेते हैं कि यही कुछ मेरे लिए करेंगे। खुदावन, हमें मुआफ कीजिए। आप हैं सब करने वाले, कुदरत और फतह आपके नाम में है। और खुदावन, फजल बख्शिए कि हम आपकी तरफ देखने वाले हो सके। हमारे जितने भी अजीज जिस जिस मीडिया पर आपके कलाम को सुन रहे थे, उनके लिए आपकी बरकत मांगता हूं। खुदावंद, अगर कोई बीमार है, कोई जरूरतमंद है, खा वो किसी ही किस्म की बीमारी या किसी ही किस्म की जरूरत क्यों नहीं, अपनी कुदरत कामला के वसीला से उनकी जिंदगी में गहरा काम कीजिए। अपने निशान और अजीब काम जाहिर कीजिए, मौजज़ा कीजिए, जिंदगियों को बदल दीजिए, ताकि कल हम आपके लोगों की गवाही को सुन सकें। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब मालिक की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।